Hello students, welcome back again in Savan School's distance learning classes. So in continuation of chapter 2, today we have to do some exercise related to the chapter. So everyone, please open page number 13. So students, this is your page number 13, comprehensions. Okay. So we have read about this chapter, Angkor Mat. So there are some questions related to this chapter. Come on, let's start to do these exercises. So exercise A, tick the correct option. What has claimed the attention of the archaeologist? What has claimed the attention of the archaeologist? And the options are Angkor Wat, Cambodian dance, or caves. Yes, you're right. Angkor Wat. Where does the sun rise? Second question is, where does the sun rise? And the options are behind the 5 towers, in front of the towers, or above the 5 towers. And the answer is behind the 5 towers. Come on, come to the third question. The temple and its dependencies are built on strictly. Options are informal plan, formal plan, or formal land. Yes, it is formal plan. Okay students, can we go further? Now, come to the fourth one. The temples are empty of religion, water, or moss. Yes, you're right. The temples are empty of religion. And now, the last one. Why was water kept in the large basin on each story? For drinking, for bathing, for purification. Yes, C is the correct option, for purification. So I hope you have done the tick the correct options. Now come to the next exercise. Fill in the blanks. Dash was the capital of great empire Angkor. What you have to write? You have to write Angkor. Second, the houses were of dash surrounded by their little compounds. The houses were of wood. Now come to the third one. The galleries are adorned with bas reliefs. Fourth, every inch of the space is covered with figures. Last one, for it was not dash that the artist sought but action. It was not beauty, that the artist sought but action. Okay students, now come to the question number C, exercise C. Match the following. First, Angkor Wat. Angkor Wat was the famous temple. Angkor, capital of a great empire. Galleries. Galleries, bas reliefs. Mystic Tower. Mystic Tower, Spirit Citadel.
and sunken basins, water purification. So I hope, dear students, you all have done the exercise of page number 13. Now turn your page and open page number 14. Here is exercise D. State true or false. First one, the jungle held in check for a while by the business of man. So is it true or false? It is true. Write T for true. Okay. Second, Angkor Wat is a shabby building. It is a shabby building. No. शैबी का मतलब होता है बिल्कुल ख़राब, जर्जर हालत में. तो अंकोर वाट जो थी वो क्या, वो जर्जर और ख़राब हालत में मिली थी? नहीं ना. यही वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जो कि यही एक ऐसा मंदिर था जो अच्छी हालत में मिला था. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ थर्ड वन, द प्लेनलेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेड स्कल्पचर्स डेकोरेटिव. प्लेनलेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेड स्कल्पचर्स डेकोरेटिव ना. उन्होंने कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग से नहीं किया था, बिल्कुल प्लेननेस था. जो पुराना जो चल रहा था उसी को ही वो फॉलो कर रहे थे. तो दिस इज ट्रू. राइट टी फॉर ट्रू. फोर्थ, द टेम्पल्स आर एम्पटी ऑफ रिलीजन. टेम्पल्स आर एम्पटी ऑफ रिलीजन ना. वहाँ कुछ भी नहीं था, अब सारे के सारे मंदिर खाली थे. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. राइट टी फॉर ट्रू. Fifth, the galleries are not adorned with bas reliefs. Are not adorned with the bas reliefs. This is incorrect. The galleries are adorned with bas reliefs. सुंदर चित्रकारी हो रही थी गैलरीज में. ये क्या आएगा? False. Okay, students. So I hope you have done the same, the exercise. Now let's go further. Come to the word wise. Here it is. It's also on page number 14. So here, look at the names. Come from this side. Names of specialist. कुछ लोग अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं. जैसे मेडिकल लाइन में है तो डॉक्टर है. डॉक्टर्स में भी काफ़ी सारी अलग अलग लाइंस होती हैं. यदि हार्ट स्पेशलिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट है. बच्चों का स्पेशलिस्ट है तो पीडियाट्रिशियन है वो. ठीक है. तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशन में हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए एक नाम होता है. और हम इस एक्सरसाइज में उन्हीं स्पेशलाइज नामों के बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो look at the names of specialists given in the box and write them against their right explanation. यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ नेम्स दे रखे हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एज आई हैव टोल्ड यू, हिस्टोरियन है. तो इनमें से हमें करेक्ट इसमें फिल करने हैं. आप देखेंगे यहाँ पर हमको हिंट दे रखा है. जी से स्टार्ट क्या हो रहा है? जियोलॉजिस्ट. A person who specializes in geological study. We are having a hint. So geologist is the correct. Okay. A person who studies human customs and beliefs. A. Anthropologist. Anthropologist. Okay. Next, a person who treats nervous system disorders. हिंट क्या है? एन है, और एन से क्या स्टार्ट हो रहा है? न्यूरोलॉजिस्ट. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर? न्यूरोलॉजिस्ट. नेक्स्ट,
A person who specializes in treatment of heart and its diseases. C. एंड कार्डियोलॉजिस्ट सी से स्टार्ट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट. अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस. पी. साइकियाट्रिस्ट. पी साइलेंट है इधर, हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? साइकियाट्रिस्ट. And the last one, a person who specializes in the study of history. H for historian. इतिहासकार जिसे हम बोलते हैं. Okay students, I hope you have understood this and also you have done this. Okay, now looking forward, here is a grammar portion also. Noun, हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में. What is the definition of noun? Yes, a name of person, place or thing is called noun. यानी जहाँ कहीं किसी person का नाम आए, किसी thing यानी वस्तु का नाम आए या किसी place का नाम आए, क्या होता है? नाउन होता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंस दे रखे हैं. अंगकोर वॉज द कैपिटल ऑफ अ ग्रेट एम्पायर. अंगकोर एक जगह है ना, प्लेस, तो ये क्या है? नाउन है. ओके. सम ऑफ द टेम्पल्स लुक्स एज दो दे हैड बीन इन वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट वॉन्टेनली डिस्ट्रॉयड. टेम्पल्स प्लेस है, जगह है, तो क्या है? ये एक नाउन है. ओके. So this is the end of page number 14. Now come forward on page number 15 beta. The underlined words given in the above sentences are nouns. जो underlined words हैं मैंने आपको बताया ना अभी, वो nouns हैं. अंकुर proper noun है and temple is a common noun. अंकुर proper कैसे है और temple common कैसे है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. A noun is a word that is used to name living beings, places, things, ideas and feelings. Now look at the kinds of noun. First is common noun. The name given in common to every person, place or thing of the same kind is a common noun. जिसे हम commonly बोलते हैं, like teacher, children, etc. टीचर्स, चिल्ड्रन, एट्सेट्रा. टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, तो कॉमन है. वर्ड टीचर इज़ कॉमन फॉर एवरी टीचर. चिल्ड्रन बच्चा कोई भी हो सकता है, बच्चे कोई भी हो सकते हैं ना. स्पेसिफिकली हम किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. जब हम किसी पर्सन को नाम दे देते हैं, किसी प्लेस को नाम देते हैं. और थिंग इज़ अ प्रॉपर नाउन, या किसी चीज़ को नाम दे दें. ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हर प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे कि ओडिशा. ओडिशा क्या है? एक जगह का नाम है और प्रॉपरली नाम दिया हुआ है कि उड़ीसा. जगह कौन सी? उड़ीसा है. ठीक है. जनवरी, मैं कहूँ मंथ, तो कॉमन है ये. पर यदि मैंने कहा जनवरी मंथ, तो ये क्या हुआ? प्रॉपरली मैं बता रही हूँ कि ये जनवरी मंथ की बात हो रही है. कलेक्टिव नाउन. द नेम गिवन टू अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज वन होल इज अ कलेक्टिव नाउन. यानी हम जब किसी लोगों के कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, लोग हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग है ना, जहाँ यूनिफॉर्मिटी हो, एक ही टाइप के एनिमल्स हों जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो, कलेक्शन, ऐसे कलेक्शंस को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि क्लास. क्लास कैसे कलेक्टिव नाउन है? देखो यहाँ यूनिफॉर्मिटी है कि स्टूडेंट हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ कोई टीचर इंक्लूड नहीं है क्लास में.
बंच, बंच मीन्स गुच्छा, या तो फ्लावर का बंच हो सकता है ना, या फिर अ बंच ऑफ बनाना हो सकता है. जो सिमिलैरिटी है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वहाँ पे. मटेरियल नाउन, द नेम गिवन टू अ मैटर और सब्सटेंस. मैटर मतलब कोई भी वस्तु जो होती है, किसी ना किसी मटेरियल की तो बनी होती है, ठीक है. सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. तो जिस चीज़ से वो बनी होती है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में हम जो लिखते हैं वो लेड होता है ना, तो लेड क्या है, एक मटेरियल नाउन है. बाकी का इसमें क्या है, इसमें वुड है, ठीक है, बाकी का इसमें वुड है, तो इसका मटेरियल बाकी का क्या है, वुड. ये भी एक मटेरियल नाउन है. जैसे कि सिल्वर हुआ, वुड हुआ, एट्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ समथिंग that can be felt but cannot be touched or is an abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो फील कर सकते हैं पर आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आप फील कर सकते हो, आप अंदर से खुश हो, या खुशी दिख सकती है, आप टच नहीं कर सकते उसको. ओके, यू जस्ट फील दिस. प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी एट्सेट्रा. दुख है ना, रोना, ये सब चीज़ें क्या है, ये आप फील कर सकते हैं, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं और देखा नहीं जा सकता है ये. ओके, सो हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? देयर आर 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ नाउन. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो स्टूडेंट्स, here is another exercise based on this noun. So underline the nouns in the following sentences and write their types in the given space. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, उनमें हमें नाउन को अंडरलाइन करना है और उनके टाइप हमें बताने हैं, ठीक है बेटा. तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फर्स्ट 2 या 3 करके बताऊँगी, बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट at your own. Okay, you have to do it. First is health is wealth. Health and wealth दोनों ही देखी जा सकती है क्या? हेल्थ और वेल्थ को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते ना. हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ. Actually they are both abstract noun because health does not refer to a specific thing. Okay students, it refers to a general concept. एक जनरल चीज़ है हेल्थ, स्पेसिफिकली कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है. वेल्थ इज़ द सेम वे, इट डजेंट रेफर टू अ पाइल ऑफ कॉइन्स बट टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ वेल्थ. लाइक इसमें कुछ नहीं बताया कि वेल्थ में बंडल ऑफ नोट और कॉइन्स, ठीक है, बस एक आइडिया है. सो हेल्थ एंड वेल्थ बोथ आर द abstract noun. Now next, the class is studying seriously. So class कौन सा नाउन है? करेक्ट, कलेक्टिव नाउन. Okay students, so rest of this exercise you have to do yourself. This is your homework. Now come to the last exercise B. Fill in the blanks with the suitable collective nouns. यहाँ पे कुछ collective nouns दे रखे हैं और उनको fill up हमें करना है इन blank spaces में. So a dash of fish, यहाँ पर आएगा बेटा shoal. First one, shoal of fish, SHOAL. Now turn your page and open page number 16. So a flock of sheep, a pride, PRIDE, pride of lions, a swarm of bees, SWARM, swarm, a band, BAND, band of musician,
a gang, G-A-N-G, gang of thieves, a shower of rain, okay. So now students, this is all done now. Now this exercise number C, आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, ये आपको खुद करना है. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ ठीक है नाउन्स दे रखे हैं, जिसमें से कुछ मटेरियल नाउन है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आपको इनमें से अलग अलग कॉलम्स में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख करके लिखने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed our chapter number 2. Okay, in the next session or next class we'll read the next chapter number 3. Till then, stay safe and healthy at your home. Have a nice day.